Very good morning, children. Today we will start the chapter 4 in science, that is solid, liquid, and gases. The chapter 4, which we have started in our Google Meet classes, but again I am starting the chapter explanation portion for all of you. So let us start the chapter. Matter. Matter is what? Anything that occupies space and has mass is called matter. We have discussed it earlier. The definition says matter, all the things in the surroundings which have mass, which have weight, and which occupies the space, like this pen. If I am keeping my pen here, this pen will occupies the space. This pen will occupies the space. It means it acquires a space. ये पेन जगह घेरती है, जगह लेती है. Okay. Similarly, if I'm showing this box actually occupies a space. ये भी space occupy करता है और इसमें भी weight होता है, mass होता है. So we can say that this is a matter. So all the things which occupies a space and has mass is called matter. Now the molecules. So molecules क्या है? For this chapter, the matter, molecules, these are some points which are very important. So we are discussing the definition here. Now the molecules. So molecules are what? All matter is made up of so many smaller tiny particles. They are molecules. So everything in this world is made up of molecules. They are very smaller, so we cannot see by our naked eyes. We cannot see the molecules. We cannot see the molecules by our naked eyes. These are arranged differently in different substances. All the molecules are arranged in a different manner. So their shapes depends on the arrangement of the molecules. Every material is different from each other. Why they are different from each other? Because the molecules of the materials are arranged in a different manner. Like in the chapter, we will discuss about the arrangement of molecules in a solid form, in a liquid form, and in a gaseous form. These three names, solid, liquid, and gases, these are the state of matter. These are the three states of matter. So there are three states of matter: solids, liquid, and gas. So we can divide the material into these three states. Whether the materials could be solid, either the materials could be solid or liquid or gases. इट मीन्स, इसका क्या मतलब है कि जो भी मटीरियल्स हैं वो या तो सॉलिड होंगे, या तो लिक्विड होंगे, और या फिर वो गैसेस होंगे. सो हियर अभी हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी मटीरियल, कोई भी चीज़ सॉलिड है? हाउ कैन वी से दैट द मटीरियल और द थिंग इज इन द सॉलिड स्टेट, और द थिंग इज इन द लिक्विड फॉर्म, और द थिंग इज इन द gaseous form? So we can decide the state of matter, we can decide the thing is solid, liquid, or gas according to the arrangement of molecules. The molecules, how the molecules are arranged, कैसे वो उस molecules जो है वो कैसे व्यवस्थित हैं. किसी भी चीज़ को हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में कैसे बांट सकते हैं? उनके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के आधार पर. सो यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है. हियर यू आर सीइंग द पिक्चर, द डायग्राम ऑफ द सॉलिड. हियर दीज आर द स्मॉलर सर्कुलर बॉल्स. आपको ये गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है. यहाँ पे ये गोल स्ट्रक्चर शो कर रहा है मॉलिक्यूल्स को. हम लोगों ने ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है हम लोगों को, ये मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा है. So these molecules here in the solid thing,
The molecules are very close to each other. They are very near. They are very near. और यहाँ पर दो बहुत पास पास हैं. इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है. So these molecules are very close to each other. बहुत पास हैं. अभी we can say that here the examples, I am giving examples to explain you what is intermolecular space. So if these are the two molecules, molecule 1 and molecule 2, अगर ये दो molecules हैं और आप देख रहे हो कि इनके बीच में स्पेस दिख रहा है, जगह दिख रही है, सो वी कैन से ये जो भी स्पेस है, इसी स्पेस को हम क्या कहते हैं? इंटरमोलिक्यूलर स्पेस. द स्पेस, जगह, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो जगह है उसे हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस. द स्पेस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स आर नोन एज intermolecular space. Space between the two molecule is known as intermolecular space. Here in this picture, this is a molecule. This is a molecule, but you are seeing that no intermolecular space. यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं दिख रहा है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में. So now the features. What are the features of solid? क्या फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं सॉलिड के. सो फर्स्ट क्या क्वालिटीज़ हैं? तो फर्स्ट क्वालिटी इज इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड. They are tightly packed means they are very close to each other. All the molecules are very close to each other like this. वो बहुत पास पास होते हैं. The force of attraction is higher. अब अगर वो दो पास पास चीज़ें होंगी तो उनके बीच का जो फोर्स है, जो उन दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब वो दोनों एक दूसरे को पकड़ कर रखा है उन्होंने, उनके बीच में एक फोर्स, एक पावर, एक शक्ति काम करती है, एक फोर्स काम करता है, जिसे बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. दो मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स जो कि सबसे ज़्यादा होता है इन सॉलिड फॉर्म. सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हायर और मैक्सिमम. द थर्ड पॉइंट इज intermolecular space between the molecules of solids are absent. Means दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह होती है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है या एब्सेंट होती है. सो दीज थ्री पॉइंट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ solids. So on because these qualities are there, so that solids have fixed shape and volume. All the solids have fixed shape. उनका shape fix होता है और उनका volume भी fix होता है. Okay, now the liquids. You are seeing that here the in glass there is a liquid and ये जो गोल गोल दिख रहा है, these are the molecules. So molecules are थोड़ा दूर हैं यहाँ पर. अभी इस पिक्चर में आप देख रहे थे कि molecules are very near to each other, बहुत पास है, but here थोड़ा सा डिस्टेंस दिख रहा है अभी. तो अभी क्या कह सकते हैं कि intermolecular space of the liquid molecules are bigger than the solids. They are bigger than the solids. मतलब solids की कंपैरिजन में लिक्विड के जो बीच का जगह है वो ज़्यादा होती है, मॉलिक्यूल्स का स्पेस जो है ज़्यादा होता है. ये these are the molecules and this is the space. तो यहाँ पे जैसे स्पेस दिख रहा है तो ऐसा ही स्पेस लिक्विड्स के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं. सो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर लूजली पैक्ड. यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? दे आर लूजली पैक्ड, मतलब वो दूर दूर होते हैं. उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से कम होता है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर लेसर. मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्ट करने की पावर है वो कम है सॉलिड के कंपैरिजन में. ओके, नाउ the intermolecular space between the liquid molecules are more than the solids. दोनों के बीच का जो जगह है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी है, वो ज़्यादा होती है सॉलिड के कंपैरिजन में. इसीलिए लिक्विड्स कैन मूव फ्रीली एंड फ्लो. इसीलिए लिक्विड्स की एक प्रॉपर्टी होती है, दे कैन फ्लो. ऑल द लिक्विड्स कैन फ्लो. वो बहते हैं, वो बह सकते हैं. आपने पानी को बहते हुए देखा है ना? दूध, मिल्क, water, juices, these are the examples of liquids and they can flow. Okay, so we can say that liquids have definite volume
बट नो डेफिनेट शेप। उनका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है, डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, बट उनका शेप फिक्स नहीं होता है। इसका क्या मतलब है कि वो जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं वो उसी का शेप ले लेते हैं। अगर हमने पानी को एक ग्लास में रखा है तो वो उसका शेप ले लेंगे, और अगर हमने ग्लास को एक कटोरे में रखा है, बाउल में रखा है, तो वो उसी का शेप ले लेंगे। लेकिन सॉलिड्स नेवर चेंज देयर शेप। सॉलिड्स अपना शेप नहीं चेंज करते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज gases. Here you can see this is a balloon. Inside that balloon the air is filled or gas is filled, and these are ये जो गोले हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको? ये these balls represent the molecules of the gas. So गैस मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपको दिख रहा है कि इनके बीच में बहुत सारा स्पेस है। So अगर ये दो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, तो आप देख रहे हैं उनके बीच का स्पेस मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है। ओके, सो क्या हो गया, इसके क्वालिटीज़ क्या हो गई गैस की? मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। दे आर वेरी फार, वो बहुत दूर दूर हैं। मॉलिक्यूल्स जो है वो गैस के वो बहुत दूर दूर हैं। नाउ द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज। अभी दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है वो मैक्सिमम है, या बहुत ज़्यादा है। एंड थर्ड पॉइंट इज सो दे कैन मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, और इसीलिए वो किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स, ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली इन एवरी डायरेक्शन, एंड और वो कहीं पर भी कितनी भी दूर जा सकते हैं। सो gases do not have definite shape and volume. So गैस का शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट या फिक्स्ड नहीं होता है, इसीलिए आप गैस को पकड़ नहीं सकते। आप गैस को पकड़ नहीं सकते, वो एक जगह पे नहीं रुकती है, वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत फास्ट वे में मूव करती है। ओके, जब हम अपने स्प्रे की जो परफ्यूम की बॉटल को अपने रूम में एक जगह पे स्प्रे करेंगे तो वो दूसरे रूम तक फैलती है। उसकी स्मेल, उसकी जो फ्रेगरेंस है, उसकी जो महक है, वो दूसरे रूम तक आसानी से पहुंच जाती है। इसीलिए क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली इन ऑल द डायरेक्शंस। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस इन वाटर। It means कि solid, liquid and gases can dissolve and cannot dissolve inside the water. So many solid materials, बहुत सारे solid materials ऐसे हैं जो पानी में dissolve होते हैं completely, like sugar, salt, right? So these are the solids, examples of the solids which can easily dissolve inside the water, और वो पूरी तरीके से पानी में घुल जाते हैं। Okay? But बहुत सारे ऐसे सॉलिड हैं जो कि नहीं घुलते हैं, जैसे सैंड, बालू, ओके, चॉक। नाउ द मिसिबल लिक्विड्स एंड इमिसिबल लिक्विड्स। सो मिसिबल लिक्विड्स आर व्हाट? दोज लिक्विड्स दैट डिजॉल्व इन वाटर, दोज लिक्विड्स दैट डिजॉल्व इन वाटर and mix with each other are called miscible liquids. So the liquids which are dissolved in the water and mix with each other are called miscible liquids. वो liquids जो पानी में घुल सकते हैं और आपस में भी घुल सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? miscible liquids. जैसे मिल्क, लेमन जूस, ग्लिसरीन, ये सब क्या हो गए? ये these are the liquids, और ये पानी में dissolve होते हैं. Whereas immiscible liquids, these are the liquids which cannot dissolve or which will not dissolve in water are called immiscible liquids. बहुत सारे liquids होते हैं जो कि पानी में dissolve नहीं होते हैं, like oil, तेल, केरोसिन। ये कोई भी ऑयल और कोई भी किसी भी तरीके का ऑयल या तेल पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, वो पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है, अलग से दिखता रहता है। सो दिस इज नोन एज इमिसिबल लिक्विड्स। नाउ चिल्ड्रन,
here some gases, there are some gases. ये तो बात हो गई लिक्विड्स की, पानी में डिज़ोल्व होने वाले लिक्विड्स की, सॉलिड्स की जो कि पानी में डिज़ोल्व होते हैं. बट कुछ ऐसी गैसेस भी होती हैं जो कि पानी में डिज़ोल्व होती हैं. देयर आर सम गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन. दे कैन डिज़ोल्व इनसाइड द वाटर बिकॉज you know very well, water, inside the water there are some animals and plants which can spend their whole life. वो पानी के अंदर अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड करते हैं और they can easily live inside the water. How? Because of the oxygen dissolve inside the water. Because पानी में जो ऑक्सीजन घुली होती है उसकी वजह से वो आसानी से अपनी पूरी ज़िंदगी पानी में बिता देते हैं. एंड देयर आर सम प्लांट्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, पानी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फूड बनाते हैं अपना. ओके. इसी तरह इन सॉफ्ट ड्रिंक्स यू नो द कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑल्सो कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड. सॉफ्ट ड्रिंक्स कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड which make them fizzy. Fizzy is what? Bubbly. उसके अंदर बबल्स दिखते हैं ना, जब हम उसको शेक कर देते हैं अपनी कोल्ड ड्रिंक बॉटल को तो बबल्स दिखते हैं. वाई द बबल्स आर देयर? वाई द बबल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द कोल्ड ड्रिंक बॉटल? बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस dissolve inside it. Now, when we boil water, some bubbles of air are seen on the inner side of the container. These bubbles are of dissolved gases that separate from water on heating. जब हम पानी को कभी बॉईल करते हैं चिल्ड्रन, तो हम देखते हैं कि उस पानी के कंटेनर के अंदर पानी में से बबल्स निकलते हैं. और ये बबल्स क्या शो करते हैं? These bubbles are the sign. ये बबल्स शो करते हैं that gases are dissolved inside the water. पानी के अंदर गैसेस डिसॉल्व होती हैं और when we heat the water, these gases are separating. Okay, these gases will separate during the boiling of water. So this is all for today. I hope you all have understood this portion. Thank you for watching the video.